Here is a basic theory for the compression test. So what is the difference between the tensile test and compression test? Okay. So the basic difference in the compression and tensile test, in the tensile test, the elongation, length elongation is there, and in compression, the length compression is there. Okay. So here is the theory. In the compression test, the material experience opposing the force that push inward upon the specimen from the opposite side or in the otherwise compression crash plated. The test sample is generally placed in between two hard metal braking blocks that distribute the applied load across the entire surface area of two opposite faces of the test sample, and then plates are pushed together by a universal testing machine, causing the sample to flatten. A sample will get shorted in the direction of the applied force and expand in the direction of perpendicular to the force. Okay. So, students, we can say that we can conduct both the test, means tensile and compressive test, in a single machine that called the universal testing machine. So, but what is the difference? The difference is application of the load or tendency of the load, because in the tensile test the force is tensile, and in the compressive test compression force will be applied on the specimen. Okay. So here this diagram will show here in two compressive force apply on the specimen. Initial, middle state, and this is the final state. So what happens? It compress in the direction of applied force and expand in the perpendicular direction of the applied force. Okay, so we can see here the low state follow the Hooke's law, or E equal to stress upon strain. And this question I also asked in the class test. What is the Young modulus formula? Okay, most of the students will give the correct answer. So here, where E is the Young modulus, this value is represent the how much the material will deform under applied compressive loading before plastic deformation occur. A material ability to return to its original shape after deformation has occurred in referred to as its elasticity. Okay, so these things we already discussed, same things in the tensile test. So no need to repeat again and again. What is the elasticity? What is the plasticity? The same things is there, but what is the main thing? Main thing is the we have to find out the flow pattern, because in the tensile test there is a different type of flow, and in the compressive test there is a different type of flow. Okay, so here we see the flow pattern here. So ductile material will be proportional limit in compression is very close to the in tension. The initial region of their compression stress strain diagram are very similar to the tensile diagram when a mild steel specimen is compressed.
it became to buckling outward of the side and become barrel shaped. With increasing the load, the specimen is flattened out, thus offering increasing the resistance to the further shortening. So here force is applied, length decrease, here is length decrease, this is the line of brittling, shearing, fracturing. Okay, so what is the final stage? तो ये आपका लाइन इधर दिख रहा है, as this line the material may be shear out from this line with the increasing the application of the force. Okay, so next thing, this is the basic theory regarding the this practical compression test on the mild steel. So next is what is the procedure. So see what is the objective. To study the mechanical property of the mild steel specimen under the compression. The objective is change. There is under the tensile load and here is under the compression. The procedure is same as the tensile test. See, universal testing machine is the operator. Compression test. See, same thing will be happen. We fix the specimen between two jaw. See, this jaw and this jaw used for the tensile test and upper and middle jaw used for the compression test. See, this is the specimen. So specimen is changed. The different type of specimen we can use for the tensile, and here we can use a different type of specimen. Okay, in the tensile test we use various varying diameter specimen, and here we can use the fixed diameter specimen. See here, this is the measurement 20.40 and 20.38. We can take the diameter in the and y direction. The value is same here, but only what is the difference? The difference between the manual reading. Okay. So we calculate the cross-sectional area and moment of inertia about the natural axis. Here we measure the length of the specimen, and now see, sample is placed in the UTM. Here now we can start the machine. See what happened here, the shape is changed, and here we can see the different gauge, dial gauge reading, and here is applied load. Okay, 0, then 0, 4, 100, 3. Okay, so here, and this is the diagram. See, at the initial position, the diagram is similar to the tensile diagram. Okay, but at this
what happens? We get the different shape. Okay. So this is the value where we can put the value. Okay, this is the procedure. Now this is time to self-evaluation. What we understand till now. So click here for your self-evaluation. Deformation unit length in direction of force is known as. Deformation in unit length in the direction of force known as unit strain, linear strain, lateral strain or strain. What is the right answer? You just check. So I put here, maybe it's wrong. So this is the wrong. That answer is the linear strain. Okay. So which one of the following has no unit? Modulus of rigidity, compressive strength, strain, modulus of elasticity. So anyone of you give the answer कि फॉलोइंग में कौन सा क्वांटिटी ऐसी है जिसकी कोई यूनिट नहीं है, देयर इज नो यूनिट फॉर पर्टिकुलर क्वांटिटी. ओके, तो स्ट्रेंथ की तो यूनिट रहती है, स्ट्रेंथ की भी यूनिट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की भी यूनिट रहती है. तो एक ही क्वांटिटी है बची है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. तो इसको क्लिक करें, चेक करें आंसर. दिस इज आल्सो आंसर. राइट आंसर इज स्ट्रेन. क्योंकि स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला रहता है? L1 minus L2 means del by L. So this is the answer. Next, in computing so here in compression testing increase in buckling is due to
तो कंप्रेशन टेस्टिंग में बकलिंग इंक्रीज होने का क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बकलिंग? Doesn't depend on the length to diameter ratio. Increase in the length to diameter ratio. Increase in the length to diameter ratio. ठीक है, तो डिक्रीज होता है लेंथ और डायमीटर का अगर रेशियो के ऊपर, और तो क्या होता है कि आपका जितना लेंथ टू डायमीटर रेशियो अगर ज्यादा होगा तो वो बकलिंग ज्यादा होगी। तो मे बी ये आंसर हो सकता है, क्योंकि सही है कि गलत है, दिस इज राइट आंसर। तो आप लोगों को बेनिफिट इसमें क्या है कि आप लोगों को 5 टाइप मीन्स आपको 10 MQC 1 प्रैक्टिकल से यहाँ पे मिल जाएंगे। 5 आपका पोस्ट प्रैक्टिकल एंड 5 आपका प्री प्रैक्टिकल। तो आपको टोटल 10 MQC यहीं से मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which is the SI code used for the compression test on the hard material? तो कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें यूज होता है, कौन सा कोड यूज होता है, तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर यहाँ से आपको राइट आंसर भी मिल जाएगा, वो नोट डाउन कर सकते हैं। कंप्रेशन टेस्ट इज सोशल टू टेंशन टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जो कंप्रेशन टेस्ट टेंसाइल टेस्ट के कंपेरिजन में ज्यादा यूजफुल है या ज्यादा प्रेफर किया जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये ट्रू है या फिर रॉन्ग है? तो मे बी ट्रू, ये फॉल्स है, क्योंकि हम टेंसाइल टेस्ट ही ज्यादा प्रेफर करते हैं अगर हमको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम टाइम में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर अदर मटेरियल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है, ठीक है, प्लास्टिसिटी है, तो ये सब हम टेंसाइल टेस्ट के थ्रू ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, व्हाट इज योर नॉलेज। ठीक है, नाउ वी कम टू द सिमुलेशन। ठीक है, तो ये यूटीएम मशीन है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अब हमको डायमीटर चेक करना है, तो वी जस्ट क्लिक हियर, वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू डायमीटर चेक हो गया। फिर से चेक किया, मीन्स एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पे डायमीटर चेक हो गया, और क्या फाइंड आउट किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पाई डी टू पावर 4 अपॉन 64। ओके, तो यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट, लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, स्पेसिमेन की लेंथ कितनी है? 43 mm। नाउ अब हमको ये जो है इसको यहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, ये फिक्स हो गया। उसके बाद हमको जो है जॉ क्लोज कर देना है। ठीक है, ये फिक्स हो गया। ठीक है, गेज यहाँ पे लगा दिया हमने। नाउ मशीन स्टार्ट करते हैं। मशीन स्टार्ट हो गया और ये रीडिंग आना शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है, 0, 400, 800, 1200, 600, 2000, 2400, 2800, 3200,
36, 4000, 4400। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 400 का जो है डिफरेंस है लोडिंग कंडीशन पे। तो यहाँ हमने मैक्सिमम लोड जो अप्लाई किया वो कितना है, 27,000। तो ये डेटा यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेल सीट में डेटा डाउनलोड हो जाएगा जो आपके प्रैक्टिकल में डेटा फिल करने के लिए यूज होगा। तो अभी हमको मशीन ऑफ कर देनी है, रेड बटन क्लिक किया, मशीन ऑफ हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट में जाएंगे और ये डेटा हमको मिल गया। ठीक है ना। तो यहाँ जिधर भी पॉइंट रखेंगे वहां पे क्या कहते हैं कि हमको वैल्यू गेन हो जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू है और कितना हमको रीडिंग पर्टिकुलर पॉइंट पे है। देखिए, तो यहाँ पे हमको शेप देखना है तो ये देखिए पर्टिकुलर शेप देख सकते हैं, या डेटा देखना है तो यहाँ से हम डेटा देख सकते हैं, पर्टिकुलर ग्राफ। ओके, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम वैल्यू अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मतलब कोई मटेरियल है तो उसके हिसाब से उसका क्या कहते हैं कि हमने कितना स्ट्रेन उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन कोई भी वैल्यू दे सकते हैं और वो वैल्यू आप चेक कर लेंगे। ठीक है। ओके, अभी इसके बेस पे ग्राफ, तो पर्टिकुलर उसके बेस पे ग्राफ, अभी जो डेटा हमने दिया है उसके बेस पे ग्राफ दे दिया। और ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, ये ऑब्जर्वेशन है, इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, कैलकुलेशन में फिर आ गया। ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। एक्चुअल कितनी वैल्यू है, इतनी है, और हमने कितना दिया, इतना दिया। ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस देखिए, 1500, 6000, इसमें 810 है। तो इसके अकॉर्डिंग, तो मतलब जो प्रीवियस ग्राफ है वो इस डेटा के अकॉर्डिंग है, और जो अभी करंट ग्राफ हमने बनाए हैं वो इसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये सिमुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ देखिए, ये आपका असाइनमेंट आ गया, 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये असाइनमेंट अगेन आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर क्विज। तो यहाँ पे अगेन आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। मीन्स बेनिफिट क्या है कि सेम के मैक्सिमम प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और हर प्रैक्टिकल पे आपको 10 क्वेश्चन एमक्यूसी मिल जाएगा, जो आपकी क्या कहते हैं कि अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, तो उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। अभी यहाँ पे देखिए, कंप्रेशन टेस्टिंग इज यूज टू डिटरमाइन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यील्ड पॉइंट, इलास्टिसिटी लिमिट। तो ये सभी हमको यहाँ से मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको लगा देंगे ऑल दी अबव। ठीक है। इफ अ पार्ट इज कंटेंट टू मूव एंड हीटेड, इट विल बी डेवलप। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि कंप्रेस किया जाता है और हीटेड है, दोनों क्या होगा, will be developed. Principal stress, tensile stress, shear stress, compressive stress क्या डेवलप होगा इसमें, तो मे बी कंप्रेसिव होगा, क्योंकि ये आपका हीट कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं, फिक्स कर दिया है ना।
तो कंप्रेसिव ही होगा, क्योंकि दो एंड पे जब हम क्या कहते हैं कि फिक्स कर दे रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं तो क्या हीट की वजह से मटेरियल इलॉन्गेशन में जाता है, उसका इलॉन्गेशन होता है। और क्योंकि दोनों साइड से फिक्स है तो कौन सा कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, what should be the height and diameter ratio in the compression testing of the material। ठीक है ना, अभी फटाक से बता सकते हैं आप कि 43 था, ठीक है ना, और डायमीटर कितना था 20 के अराउंड था, तो रेशियो कितना हो सकता है। ठीक है, तो अभी मतलब 2 से ज्यादा है तो मे भी 3 रखिए। ठीक है ना, 2 से ज्यादा था तो, लेकिन 2 से ज्यादा तो कुछ पॉइंट में दिया नहीं था, इसलिए 3 पे गए। ठीक है, material having same elastic property in all direction are called uniform, ideal material and elastic material are isotropic। So this is the property of isotropic material। Okay, now lack of alignment of material in compression test, a load increases, decrease as load increases। Lack of alignment of material in compression test, decrease, अगर डिक्रीज हो रहा है लोड इंक्रीज होने पे या फिर इंक्रीज हो रहा है लोड इंक्रीज होने पे, नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। ठीक है ना, अलाइनमेंट अगर लोड होगा तो क्या होगा, मे भी डिक्रीज होगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना जब ये ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, इंक्रीज होगा, लोड इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि आप अपना चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट 2 शेयर कर दिया, असाइनमेंट 1 पहले शेयर किया था, ट्यूटोरियल 1 के क्वेश्चन शेयर हो गया और असाइनमेंट 2 शेयर हो गया, 1 और 2 शेयर हो गया। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें हम टॉर्शन टेस्ट में जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, टॉर्शन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, तो ये टॉर्शन टेस्ट हम किस मशीन पे चेक करेंगे। तो टॉर्शन टेस्ट में क्या करना है, इन द टॉर्शन टेस्टिंग द सर्कुलर बार इज प्लेस्ड इन द मशीन such a way that its longitudinal axis coincide with the axis of the grip and so that it remain straight during the test। क्या करना है? इलेक्ट्रिकल फर्नेस गंगड़ी मैडम। तो यहाँ पे देखिए आपका मशीन है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये देखिए ऐसी मशीन, ऐसा ये स्पेसिमेन है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ये दोनों बेस और अपर जो रहता है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। तो टॉर्शन, इस मटेरियल टॉर्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे
फिक्स है, तो यहाँ पे रोटेट कर रहा है, तो एक टॉर्क इधर लग रहा है, एक टॉर्क इधर लग रहा है। उसके बाद क्या होता है कि ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ऐसा ऐसा कट क्यों है, ऐसा स्पेसिमेन क्यों लिया गया है, ताकि ये देख सकें कि हमारा जो डिस्टरबेंस, कितना डिस्टरबेंस हो रहा है, कितना टॉर्शनल मोमेंट हो रहा है, वो हम इस ग्रिप जो ग्रिड है वहां से हम देख सकें, है ना। अभी देखिए ये पॉइंट यहाँ पे है, इनिशियल लाइन यहाँ पे रहती है, तो अभी मोमेंट होने के बाद ये देखिए ए और बी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, टॉर्शन अप्लाई हो जाता है, तो ये तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे ए पॉइंट पर्टिकुलर एंगल में मूव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका टॉर्शन है। नाउ टाइप ऑफ टॉर्शन टेस्टिंग इज vary from product to product but can be usually classified axial torsion। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सियल टॉर्शन ही हो रहा है। अप्लाई बोथ एक्सिस टेंशन और कंप्रेशन एंड टॉर्शन फोर्स दी the test specimen। Torsion only apply only the torsional load to the test specimen। फिर लेयर टेस्टिंग, ठीक है, twisting the product component or specimen until the layer। ओके, मतलब उसको इतना ज्यादा टॉर्क, अपोजिट टॉर्क अप्लाई करेंगे कि वो ब्रेक हो जाए, मीन्स फेल हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कंसीडर कर रहे हैं। नाउ कंसीडर द सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ रेडियस सब्जेक्टेड टू टॉर्क, ये टॉर्क की वैल्यू है एट द एंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे ये फार्मूला आपका डेरिवेट किया गया है, और यहाँ पे फाइनल फार्मूला आप देख सकते हैं dt, मतलब जो आपका डायमीटर में चेंज हो रहा है, dr dt। तो यहाँ पे देखिए उसको हमने कंसीडर कर लिया है। अभी ये देखिए अलग अलग तरीके का क्या क्या रिजल्ट आता है ट्विस्टिंग से, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर थ्योरी है, आप इसके थ्रू जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर, ठीक है, टॉर्सिंग टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील। ठीक है, स्पेसिमेन माइल्ड स्टील मटेरियल का रहेगा, ठीक है ना, और ये आपका टॉर्सिंग टेस्टिंग मशीन है, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपका स्पेसिमेन है, यहाँ पे फिक्स करेंगे और यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो डायमीटर जो लेना है हमें यहाँ का लेना है, इनिशियल डायमीटर इज 11.5 mm। ठीक है, गेज लेंथ ऑलरेडी आपको बताया था, जैसे साइड टेस्ट में रहती है गेज लेंथ, वो लेंथ जहाँ पे हमको हम कंसीडर करते हैं स्पेसिमेन का जो भी डिफॉर्मेशन होता है। टॉर्शन टेस्ट ऑन वर्टिकल माइल्ड स्टील, तो यहाँ पे हमने ले लिया लेंथ। ये लाइन क्यों ड्रॉ किया है यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है ताकि इस लाइन पे मतलब जो डिफॉर्मेशन हो, जो ट्विस्टिंग हो पर्टिकुलर लाइन का, वो हम देख सके, इसलिए ये लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसको हम पुट करेंगे, मशीन ऑन करेंगे, देन ये ग्राफ हमको मिल जाएगा, ये देखिए, और यहाँ पे वैल्यू हम सेम जैसे उसने पुट किया था, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये जो वी लैब है
ये लगेगा आपको, ये लगेगा सी टाइप की। ओके, तो अभी आए हम सेल्फ इवेल्युएशन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को अगेन 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। मॉडल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, lateral strain, lateral strain, long stresses and long shear stress and shear strain। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, कोई भी लगाइए और चेक करिए, ठीक है। जस्ट तो आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है वो आपको पता चल जाए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ वेटिंग हेड इन द स्पेसिमेन, अप्लाई ट्विस्टिंग मोमेंट, बैलेंस टॉर्क, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे मे बी ये हो सकता है दोनों का, ठीक है। बैलेंस टॉर्क के लिए और अप्लाई करने के लिए भी यूज होगा। नेक्स्ट, द इक्वेशन P equal to T, this is torque, this is the theta, what is the twisting, this is the length, J is the polar moment of inertia, twist ratio of the twist, yield point of stress, slope of the graph, T upon tau is the polar moment of inertia, this is the slope of graph। Okay, so the ratio of space and solid hollow source both having outside diameter d and hollow inside diameter d by 2 is torsion। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये क्या होगा, the ratio of strength and solid hollow source। तो बताइए, तो ये मे बी करेक्ट हो सकता है, ये भी रॉन्ग, ठीक है। द टॉर्शनल रिजिडिटी ऑफ द सॉफ्ट एक्सप्रेस बाय द, तो इसमें भी कोई भी लगा करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट। नाउ वी कम टू द सिमुलेशन। तो सिमुलेटर में जैसे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं सेम वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। मशीन के पास हम खड़े हुए, देन ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है। तो ये टेस्ट स्पेसिमेन का डायमीटर चेक किया हमने 11.06, देन लेंथ चेक करना है, ठीक है, लेंथ 190 mm। नाउ क्या है, एक मार्किंग लगाएंगे, मार्क लगाएंगे, ताकि उस मार्क के थ्रू हम कितना टॉर्शनल डिफॉर्मेशन हुआ है वो चेक कर पाएंगे। ओके, ठीक है। ये स्पेसिमेन हो गया यहाँ पे फिट करने के लिए। मशीन को फिट किया, फिर यहाँ पे फिक्स कर दिया, अगेन रोटेट किया इसको, तो अभी ये फिक्स हो गया स्पेसिमेन। अप्लाई कर दिया, यहाँ पे मशीन ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया। तो टिल द ब्रेकिंग क्या कहते हैं कि टॉर्शनल फोर्स अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या डायग्राम है, ठीक है। अलग अलग फोर्स से
तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका आप देख सकते हैं, है ना। तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, तो स्लोप कितना हो गया, 0.75 इज द स्लोप। ठीक है, तो इधर आप वैल्यू, जैसा वैल्यू आप पुट करना चाहते हैं वैसा वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको चेक कर लीजिए, ये इंटर्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ से आप डिफरेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। देन असाइनमेंट, ठीक है ना। तो ये असाइनमेंट आपको अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ, ये असाइनमेंट नंबर 3। ओके, तो इस तरीके से ये असाइनमेंट। देन अगेन क्विज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विज में, ठीक है, अगेन आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। व्हाट डज द फेल्योर प्लेन सेंटर ऑफ द स्पेसिमेन, ठीक है, लोअर रीजन, a material capable to absorb large amount of energy before the fracture। ठीक है, तो कौन सी एनर्जी रहती है वो प्लास्टिसिटी एनर्जी रहती है, रेजिलियंस, डक्टाइल, टफनेस रहता है। ओके, देन इन द इक्वेशन P of J equal to F और J, व्हाट इज द F। तो F आपका एयर स्पेस है, टॉर्क है, पोलर मोमेंट है, या फिर मे भी ये एयर स्पेस हो सकता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉफ्ट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सियल ऑफ द सॉफ्ट नोन एज। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जो टेंसियल फोर्स है और डिस्टेंस इसका आपका जो है, तो ये आपका क्या होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन। टेंजेंशियल फोर्स है और डिस्टेंस है। फोर्स और डिस्टेंस का जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि अभी बेंडिंग मोमेंट में किया, तो वो मोमेंट रहता है, तो पहला दो तो आपका ऐसा ही खत्म हो गया। तो अभी ये इधर बेंड नहीं हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, तो मे बी ये आंसर करेक्ट हो सकता है, ट्विस्टिंग मोमेंट, है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द failure ऑफ स्पेसिमेन इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कौन से एंगल पे फेल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 0.75, along a plane parallel to the axis, along a plane perpendicular, ये करेक्ट है आपका
परपेंडिकुलर जो एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका स्टडी में भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे डेमो आपको मिल जाएगी कि कैसे ये आप टेस्ट का वीडियो है। ठीक है, सिमुलेशन आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, देयर इज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, तो आप अपना क्वेश्चन पूछिए।